So today we'll be talking about rare earth elements. Rare earth elements. What is their availability in our country and what are the latest discoveries and why it is bedrock of modern technology. Why it is bedrock of modern technology. So in order to understand the elements, it would be my advice that you should first of all go through the class 9th and 10th when you studied chemistry and you studied Mendeleev periodic table. So find out what is Mendeleev periodic table, how many elements are there, which is the most abundant element on the earth, and what are radioactive elements, what are inert gases, what are rare earth elements. We'll be focusing our lecture today on rare earth elements. So rare earth elements are total 17 in number. They are total 17 in number. They are known as lanthides. They are known as lanthides. That is 57 to 17. One is scandium and one is deuterium. They are written by SC and Y symbol. So lanthide series comes in the group 3 series. Lanthide series comes in the group 3 series. Why they are known as rare earth elements? Because they are present in the earth in abundance, but they are not easy to be extracted. They are dispersed. They are not concentrated at one place. They are dispersed all over the earth. So their extraction is very costly. Their extraction is very costly. So what was the use of rare earth element? First of all, it was used in incandescent lamps. अगर आप पुराने जमाने में जाएं आज से 20 साल पहले तो एलईडी बल्ब नहीं हुआ करते थे, नॉर्मल बल्ब होते थे जिनमें एक फिलामेंट होता था। अगर टंगस्टन के आप बल्ब लेंगे वो फिलामेंट हीट हो जाता था, उस बल्ब के अंदर इनर्ट गैस भरी होती थी ताकि उसका ऑक्सीडेशन ना हो और वो फिलामेंट हीट होकर टेम्परेचर बढ़ करके पूरे कमरे को रोशनी देता था। अब पिछले 10-12 सालों में एलईडी बड़ी प्रेवलेंट हो गई है। व्हाट इज एलईडी? एलईडी इज द लाइट एमिटिंग डायोड। लाइट एमिटिंग डायोड। सो इट इज ए ब्राइटर लाइट, it takes less energy but produces more brightness and consumes less energy. LED bulbs consume less energy in comparison to the incandescent lamps. So what are the chemical properties? What are the chemical properties of these rare earth element? They are magnetic in nature. They are good conductor of heat and electricity. And number 3, they are fluorescent in nature. By fluorescent, I mean to say they emit light. They emit brightness. They remove the darkness. That is their chemical properties. So now we'll be going through a presentation on the subject and we will learn in detail that what are rare earth elements and where in our country they are in abundance and what are the difficulties, challenges as a country we are facing in extraction of these rare earth elements. ये आपको स्क्रीन दिख रही है ना? स्क्रीन दिख रही है? Yes, sir. Rare earth elements overview. Yes, sir. Sources, availability and latest discoveries
in India. This is the subject of today. And the last portion is why they are bedrock of modern technology. मॉडर्न टेक्नोलॉजी में ये बेडरॉक क्यों है? जैसे अभी रशिया यूक्रेन की वार हुई, ट्रम्प वांटेड ए पीस, ही सेड दैट यू गो फॉर पीस. तो व्हाट ही वाज आस्किंग फ्रॉम द यूक्रेन, he asked from the Ukraine about the rare earth elements, that I will extract the rare earth elements. अफगानिस्तान छोड़ दिया किसने? यूएसए ने. रशिया ने उसकी मदद करनी शुरू कर दी, चाइना ने उसकी मदद शुरू करनी कर दी, बट उन्होंने बदले में क्या मांगा? रेयर अर्थ एलिमेंट्स. सो दे आर इंपॉर्टेंट फॉर मॉडर्न डे टेक्नोलॉजी. आपकी ऑटोमोबाइल्स, आपके एयरक्राफ्ट के पुर्जे, आपके चिप्स, सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री, सारी की सारी रेयर अर्थ एलिमेंट से चल रही है. So rare earth elements are a group of 17 metallic elements which include the 15 lanthides in the periodic table plus scandium and yttrium. ये पॉइंट हमने पहले डिस्कस कर लिया है. ठीक है. These elements are known for their unique magnetic luminescent. Luminescent means उनकी रोशनी पैदा होती है. इलेक्ट्रोकेमिकल प्रॉपर्टीज. इलेक्ट्रोकेमिकल प्रॉपर्टीज making them essential in wide range of modern technology such as electronics, renewable energy, defense system and healthcare. They are also used in the healthcare. This is the list of rare earth elements we would like to read. Lanthanum, cerium, praseodymium, neodymium, promethium, samarium, europium, gadolinium, terbium, dysprosium, holmium, irabium, thulium, yttrium, lutetium, scandium, and yttrium. What are their sources? Rare earth elements are not found in pure metallic form in nature. Metallic form में नेचर में नहीं मिलते हैं, बट ओकर इन ओवर 250 मिनरल्स. 250 मिनरल्स में ये मिलते हैं. कॉमनली नोन एज फॉस्फेट्स, सिलिकेट्स, कार्बोनेट्स एंड ऑक्साइड्स. कहाँ पे मिलते हैं? फॉस्फेट के अंदर से निकालने पड़ेंगे, सिलिकेट के से निकालने पड़ेंगे, कार्बोनेट से निकालने पड़ेंगे, ऑक्साइड से निकालने पड़ेंगे. सो मोस्ट कॉमन मिनरल्स विच फ्रॉम विच दे आर एक्सट्रैक्टेड एज bastanysite, fluorocarbonate found in carbonate and igneous rocks. Monazite जो इंडिया में ज्यादा है, phosphate found in beach and sand places. Genotime, yttrium phosphate found in mineral sand deposit. Loparite found in alkaline igneous rocks. China dominates global rare earth element production. चाइना के पास डोमिनेशन है, इसकी मार्केट है. 80% ऑफ द सप्लाई चाइना के पास है. अदर सिग्निफिकेंट प्रोड्यूसर आर यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया एंड कजाकिस्तान. उसके बाद किसका नंबर आता है? यूएसए का, ऑस्ट्रेलिया का, इंडिया का, कजाकिस्तान का. रेयर अर्थ एलिमेंट्स आर ऑफन फाउंड टुगेदर एंड आर रिलेटिवली अबंडेंट इन अर्थ क्रस्ट विद सीरियम बीइंग एज कॉमन एज कॉपर. जितना कॉपर अवेलेबल है अर्थ में, उतना ही सीरियम अवेलेबल है. अवेलेबिलिटी एंड एक्सट्रैक्शन. अब अवेलेबिलिटी और एक्सट्रैक्शन कैसे करते हैं? इंडिया इज द 5th लार्जेस्ट होल्डर ऑफ रेयर अर्थ एलिमेंट विद अराउंड 13.07 मिलियन टन्स. रेयर अर्थ एलिमेंट मेनली मोनाजाइट सैंड. हमारे पास कौन सा अवेलेबल है जो हमने ऊपर डिस्कस किया है? इस नंबर 2 पे मोनाजाइट. This is available in our country, monazite. कहाँ मिलता है अब ये? कोस्टल एरियाज ऑफ आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, केरला, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात. इनलैंड प्लेसेस डिपॉजिट इन झारखंड, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु. इंडियाज रिसोर्सेज आर प्राइमरली लाइट रेयर अर्थ एलिमेंट्स. हमारे पास कौन से एलिमेंट है? लाइट रेयर अर्थ एलिमेंट्स. Heavy rare earth elements are not available
इन एक्सट्रैक्टेबल क्वांटिटीज, हमारे पास ज्यादा क्वांटिटीज में ये अवेलेबल नहीं है। ओनली नियोडियमियम एंड प्रेसिडियमियम आर करेंटली एक्सट्रैक्टेड इन इंडिया इन हाई प्योरिटी लेवल्स। हाई प्योरिटी लेवल में हम कितने एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं? दो। क्या नाम है उनके? नियोडिमियम एंड प्रेसिडियमियम आर करेंटली बीइंग एक्सट्रैक्टेड। Which is the company which is extracting these rare earth element? Indian Rare Earth Limited is the mainly entity responsible for mining and processing rare earth element in India. It is a government owned company. Rare Earth Limited is a government owned company. Processing plants are located in Ganjam, Odisha and Eluva, Kerala. कहाँ पे प्रोसेसिंग प्लांट है? गंजम और एलुवा में। India faces challenges in achieving self-sufficiency due to dispersed nature of rare earth element and lack of industrial scale facilities for alloy and magnet production. पूरी धरती पे फैले हुए हैं, एक जगह पे कंसंट्रेटेड नहीं है, और कोई पर्टिकुलर एलॉय नहीं मिलता है इसका। जैसे आयरन का एलॉय होता है, कॉपर का एलॉय होता है। एलॉय, व्हाट इज एलॉय? एलॉय इज ए मिक्सचर ऑफ हाउ मेनी मेटल्स? Two or three metals in right proportion. In right proportion. Latest discoveries and development in India. In 2025, India moved to conserve its rare earth resources by suspending a long-standing export agreement with Japan, aiming to prioritize domestic needs and reduce dependence on China. 2025 में हमने क्या किया? जापान के साथ जो हमने समझौता कर रखा था कि तू हमारे रेयर अर्थ एलिमेंट निकाल सकता है, वो हमने बंद कर दिया ताकि हम अपनी डोमेस्टिक नीड को पूरा कर सकें और हमारी डिपेंडेंस चाइना पे कम की जा सके। IREL, इंडियन रेयर अर्थ एलिमेंट्स लिमिटेड, यानी गवर्नमेंट की जो कंपनी है, दे आर एक्सपेंडिंग प्रोडक्शन टारगेटिंग 450 metric tons of neodymium by March 2026 with plans to double output by 2030. Recent discoveries include a significant carbonite deposit in Gujarat, which is being explored in rare earth element potential. New exploration method such as portable analytical instrument PXRF, PLIBS, portable Raman spectrometers are being used to identify and assess new rare earth element deposit efficiently. So by which method they are identified? By Raman spectrometer, by PLIBS, PXRF. Deep sea sediment in Afanse Nictine Seamount, Indian Ocean, have also shown significant rare earth element concentration. India is incentivizing companies to set up processing and magnet production facilities domestically with joint ventures and collaboration with Tosu Rare Earth Limited, India Limited in Visakhapatnam to enhance refining capabilities. So this is the summary. मेजर मिनरल्स हमने पहले कर लिया है कि चार तरह के सोर्सेस हैं जहां से रेयर अर्थ एलिमेंट निकलते हैं। मोनाजाइट हमारे पास सबसे ज्यादा है। कहाँ कहाँ पे मिलते हैं हमने देख लिया है। आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, केरला, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल। कितना साइज है? लेटेस्ट डिस्कवरी गुजरात में है। जापान से हमने डील सस्पेंड कर दी है। चैलेंज क्या है? चैलेंज ये है कि कहीं पे इसका अलॉय नहीं मिलता है, कंसंट्रेशन में कहीं पे नहीं मिलते हैं, पूरे डिस्पर्स होते हैं अर्थ के ऊपर, और एनालिटिकल टूल्स, फॉरेन कोलेबोरेशन वगैरह की बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ती है। R&D में हमारा पैसा कम खर्च हुआ है फिलहाल। R&D मीन्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट। रिसर्च एंड डेवलपमेंट में पैसा कम खर्च हुआ है, तो उसमें पैसा बढ़ाने की जरूरत है। So this is what we have learned about the rare earth elements. Now we have got one more topic related to this subject and we'll be coming on that also.
ये मैंने आपको भेजे थे इंडियन एक्सप्रेस के मैगजीन्स, एसेंशियल मैगजीन। पता नहीं आपने पढ़े हैं नहीं पढ़े। ये 6 जून के मैंने दो मैगजीन आपको भेज रखे हैं, इनको पढ़ो। ये बहुत अच्छे आर्टिकल्स हैं, और ये आपको अच्छे क्वेश्चंस दे के जाएंगे। आपके पेपर में क्वेश्चंस आएंगे। सारे आर्टिकल ये दोनों मैगजीन के आपको पढ़ने की आवश्यकता है। जो मैं भेज रहा हूँ वो समझो आपको, यू आर गेटिंग गोल्ड आउट ऑफ द रद्दी। पूरी रद्दी मार्केट में जो बिक रही है, उसमें से गोल्ड आपके पास आ रहा है। उसको ढंग से पढ़ो। अगर मैं पूरा अखबार 2 घंटे में पढ़ता हूँ, तो आपको मैं 4 या 5 आर्टिकल भेजता हूँ, बिकॉज यू हैव टू कंसंट्रेट ऑन दोज आर्टिकल फॉर पेपर 2। फॉर पेपर 1, yes, there is lot of scope, and that is beyond our time and management। तो ये वापस सेम आर्टिकल है इंडियन एक्सप्रेस में, साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे। व्हाट इज इंडिया शेयर इन द अर्थ रेयर अर्थ एलिमेंट, बैकबोन ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी, रिटन बाय रेणुका। ये हमने काफी हद तक डिस्कस किया है। भाई 17 एलिमेंट्स होते हैं, 15 लैंथाइड है, स्कैंडियम यूटेरियम है, ठीक है, सीरियम ग्रुप सबसे ज्यादा होता है। ये मतलब कि अब इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज हमने डिस्कस की हैं। रेयर अर्थ एलिमेंट इज कॉम्प्लेक्स, एक्सपेंसिव, रिक्वायर हाई एंड टेक्निक्स एंड स्पेशलाइज्ड लेबर टू आइसोलेट एंड प्योरीफाई दैम। वाई दे आर सीड्स ऑफ टेक्नोलॉजी। कहते हैं 1718 में जब डिस्कवरी हुई रेयर अर्थ एलिमेंट की, तो ये ह्यूमन लाइफ का हिस्सा बन गए। और सबसे पहले जो बल्ब निकला, जो मैंने बोला बल्ब बना, जिसमें 99% थोरियम ऑक्साइड थी, 1% सीरियम ऑक्साइड थी। The first successful technical use was in sunglasses neophane. From very long time, rare earth element have also been used in scientific research and study the geological origin and formation of rocks। तो हमने बल्ब्स के अंदर यूज किया पहले, जो पुराने जमाने में बल्ब आता था, जब हम लोग 25 साल की उम्र के थे और 40-45 साल तक रहे, तब तक वो बल्ब चलता रहा। जो एक बजाज के भी बल्ब आते थे। तो आपने भी घरों में शायद, जब आप 4-5 साल के होंगे, 6 साल के होंगे, देखे होंगे, उनकी बड़ी येलो सी लाइट होती थी। दैट वाज द फर्स्ट टाइम दिस वाज यूज्ड। उसके बाद लाइट एमिटिंग डायोड आ गए, एलईडी आ गए, एलईडी ट्यूब्स आ गई, पुरानी सारे खत्म हो गए, पतले पतले बल्ब आ गए, पतली पतली लाइट्स आ गई। सो दिस इज द लेटेस्ट इन्वेंशन। However, in last 3 decades, there has been surge in the use of rare earth element in diverse sectors driven by technological advancement. They are considered as seeds of modern technology। इनको हम क्या बोलते हैं? ये मॉडर्न टेक्नोलॉजी के बीज हैं। Right from their use in electronics such as smartphone, computer screen, television to their application in medical device, X-ray machine, MRI। MRI क्या होती है? मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग एंड कैंसर ट्रीटमेंट एप्लीकेशन। दे आर उबिक्विटस इन आवर टेक ड्रिवन लाइफ। उबिक्विटस का क्या मतलब होता है? मीन्स जहां ढूंढोगे वहीं मिल जाएंगे। दे आर लाइक बैक्टीरिया एंड अमीबा, हर जगह मिलेंगे। Rare earth elements have also become essential for defense sector due to their critical use in laser, avionics, radar, precision guided munition, aircraft engine, उसमें भी यूज होते हैं। Moreover, due to their unique magnetic property, they are also used in green technologies like wind turbine, electric vehicles, smart batteries. With global world now shifting towards clean energy, digitalization, advanced defense system, demand of rare earth element is poised to surge in the near future, reinforcing the status as the backbone of modern and emerging technologies। तो इस प्रकार से अब रेयर अर्थ एलिमेंट कहाँ पर हैं, कितने हैं? सबसे ज्यादा चाइना में है, उसके बाद ब्राजील में है, उसके बाद यूएसए में है, ये आप अपने लेवल पे पढ़िए, जापान में है। Where does India stand? We will discuss where does India stand. India has the third largest reserves of rare earth element, estimated at 6.9 metric ton, largely in the states of Andhra Pradesh, Karnataka, Odisha, Kerala. Monazite sands in Kerala। कौन सी सैंड में पाए जाते हैं? मोनाजाइट सैंड्स। ये क्वेश्चन आ सकता है। इन फ्रॉम विच सैंड इन आवर कंट्री rare earth elements are extracted? Monazite sands। Then
4 मेन सोर्सेस ऑफ रेयर अर्थ एलिमेंट हमने पहले डिस्कस किया है, वो आपने याद रखना है. Is India's principal source of rare earth element. As on March 21, estimated monazite resources in India is 12.73 million tons. ठीक है, चलो ये तो हमने ज्यादा याद नहीं रखना है. उसके बाद जो है हम देखेंगे कि कौन कौन सी कंपनियां काम कर रही हैं, आपने देख लिया. In 2025, government launched the National Critical Mineral Mission with the objective of securing critical mineral supply. India has also entered into agreement with other countries such as Australia and US to enhance partnership on critical minerals. आज की अखबार देखेंगे आप हिंदू हिंदू में, तो हमने चाइना को बोला है कि हमें रेयर अर्थ एलिमेंट दो, थोड़े से ऑटोमोबाइल्स के लिए और चिप इंडस्ट्री के लिए. सो व्हाट इज द वे फॉरवर्ड? नो क्वेश्चन इज, despite their use in cleaner technology, the production of rare element is not so clean. It generates massive pollution, including dust, wastewater, radioactive waste. It has a serious impact on local environment and human bodies. Moreover, intensifying global competition for rare earth element has raised concern over resource taxation and supply chain disruption. Considering this, it is crucial for the world to innovate, sustaining mining practice, and foster international partnership. It also presents opportunities for India to accelerate its domestic production. हमें अपनी domestic production बढ़ानी पड़ेगी. And to support its aspiration for energy security, technological innovation, strategic autonomy in critical sector. Recycling electronic waste can provide an answer to issue like the demand supply gap and reduce pressure on natural resources. So ये आपको लिस्ट दी है उसने वापस. 17 रेयर अर्थ एलिमेंट, 15 लेंथाइड प्लस कैंडियम एंड यूटेरियम. अब इनमें से वो क्वेश्चन डालना चाहे तो इनमें 3 रेयर अर्थ एलिमेंट दिखेगा और एक नॉन रेयर अर्थ एलिमेंट दिखेगा. पूछेगा आउट ऑफ विच इज नॉट रेयर अर्थ एलिमेंट, तो वो आपको ढूंढना पड़ सकता है, ऐसा हो सकता है. अब क्वेश्चन है, व्हाट आर रेयर अर्थ एलिमेंट, व्हाई आर रेयर अर्थ एलिमेंट रेयर डिस्पाइट देयर एबंडेंस इन द अर्थ क्रस्ट. रेयर इसलिए हैं बिकॉज दे आर डिस्पर्स्ड ऑल ओवर द अर्थ, दे आर नॉट इन कंसंट्रेशन. देयर एक्सट्रैक्शन इज चैलेंजिंग, इट रिक्वायर्स R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इट रिक्वायर्स मनी. तो ये जो लिखने वाली है आर्टिकल, इसका नाम है रेणुका. शी इज ए डॉक्टर एट हिमाचल प्रदेश नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी शिमला. सो दिस इज व्हाट इन all we have learned today about the rare earth elements. So my word of advice would be that in your own time you do read about these 2 magazines which I have circulated, not only in the group of WhatsApp of assistant commandant but also in the Telegram channel. ये 6 जून का देखिए आप, इंडियन एक्सप्रेस यूपीएससी सिविल सर्विसेज, इंडियन एक्सप्रेस यूपीएससी सिविल सर्विसेज. ये मैगजीन ढंग से पढ़िए. एकदम नहीं पढ़े जाएंगे, आई एग्री, because you may read 2 articles per day, 3 articles per day, but they will give you a good confidence in making your exam clear. This is what I want to say. Now questions from your side. Questions बोलिए. मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल भी पढ़ो, उसमें से हर साल 2-3 क्वेश्चन आते हैं केमिस्ट्री के ऊपर. मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में कितने एलिमेंट हैं? 118 एलिमेंट है. 119वां एलिमेंट आएगा तो उसका क्या नाम रखा जाएगा? ठीक है. मेटल और नॉन मेटल में क्या अंतर होता है? इनर्ट गैसेस क्या होती हैं? एक बार ढंग से पढ़ो. और जो समझदार स्टूडेंट होता है वो एक चार्ट बना लेता है मेंडलीव पीरियोडिक टेबल का और अपने आगे लगा लेता है. इस वाले 2-3 क्वेश्चन आएंगे, मैं पूरे सही कर दूंगा. गॉट माई पॉइंट? Yes, sir. ओके. So I have a question. यस यस. अपने सर वीडियो ये ऑन करो यार. ये चौथा कौन आया है? चौथा, हु इज दिस फोर्थ मैन? वीडियो ऑन करो. ये मतलब कि ना, आई डोंट लाइक दिस काइंड ऑफ स्टडी एट ऑल वेयर यू डोंट वांट टू शो द फेस. so I can, but as I ये said, हु इज द नेक्स्ट वन? ये मैं आई एम टॉकिंग ऑफ दिस मैन.
इतना शर्मीला होने की हमें जरूरत नहीं है। यस, तुम्हारा क्वेश्चन क्या है? He left the class. अच्छी बात है, खुशी की बात है। सर मैं ये था कि जो ये टॉपिक आपने पढ़ाया है इससे मतलब क्वेश्चन कैसे किससे रिलेटेड मतलब कैसे पूछ सकते हैं सर वो क्वेश्चन? आप कैसे पूछ सकते हो? नहीं नहीं, नॉट मी सर, वो क्वेश्चन आ कैसे सकता है सर नंबर पेपर एक, टू में, रेयर मतलब अर्थ किससे एलिमेंट्स क्या होते हैं? कौन सी लेंथाइड से, इन विच ऑफ द सीरीज द रेयर अर्थ एलिमेंट्स आर? नंबर टू। नंबर थ्री, इनका जो एटॉमिक नंबर है 57 से 71 के बीच में होते हैं। टोटल संख्या में कितने होते हैं? एक्सट्रैक्ट कैसे होते हैं? कौन कौन से चार मेजर सोर्सेज हैं जहां से एक्सट्रैक्ट होते हैं? इंडिया में कौन सा मेजर सोर्स है जहां से एक्सट्रैक्ट होते हैं? इंडिया की अभी प्रोडक्शन लेवल क्या है? इंडिया के चैलेंजेस क्या क्या हैं रेयर अर्थ एलिमेंट के ऊपर? ये आप सारा पढ़ेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। ओके सर। हम्म। सर पहली डिस्कवरी क्या एक हुई? फर्स्ट डिस्कवरी में रेयर अर्थ एलिमेंट कब यूज किया गया? ठीक है। अभी जो यूक्रेन सर के साथ एक्चुअली हम। डील हुई है ट्रम्प की, उसमें सारी इसी के ऊपर डील हुई है। उसने बोला ये मैं एक्सट्रैक्ट करूंगा सारे के सारे। ओके सर। बेसिकली केमिस्ट्री किससे रिलेटेड क्वेश्चन है इसके। एंड articles on this rare earth element are appearing time and again. For last 3-4 months, I have seen 3-4 articles which I have circulated in the Telegram channel also. सर आवाज नहीं आई सर आपकी। मैंने कहा इसके ऊपर 3-4 आर्टिकल मैंने शेयर किए हैं टेलीग्राम चैनल पे, आप उनको भी पढ़िए। यस। चलो, थैंक यू। जय हिंद। जय हिंद सर। जय हिंद। सर मैं ये पूछ रहा था कि अभी जो ये ट्रेड वॉर की वजह से न्यूज में है सर, रेयर अर्थ एलिमेंट्स एकदम सडनली। हम्म। करेक्ट। एक तो ये भी कारण है, और दूसरा लड़ाई भी हो रही है, और तीसरा इसकी स्क्रैस्टी है, और चौथा इसकी जरूरत सबको है। यस सर। मीन्स वी कैन नॉट मतलब जो सर्वाइव यूएस। विदाउट इट। वी कैन नॉट सर्वाइव विदाउट इट। यस सर। वही चाइना ने जो रिस्ट्रिक्शंस लगाई हैं या यूएस ने जो tariffs लगाए उसके लिए ना। हम्म। यस सर। चलो, ओके, थैंक यू। तो जय इस हिंद। पे आर्टिकल आर्टिकल आ सकते हैं। इसमें आर्टिकल साइंस एंड टेक्नोलॉजी का कोई आ सकता है आपके ऊपर, कि व्हाट आर रेयर अर्थ एलिमेंट्स एंड हाउ दे आर बेड रॉक ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी। ये आर्टिकल भी आ सकता है। इतना पढ़ने के बाद तो हम कुछ भी लिख देंगे इसके ऊपर। यस सर। यू कैन राइट ऑलमोस्ट 3-4 पेजेस, देयर इज नो प्रॉब्लम। यस सर। चलो, थैंक यू। जय हिंद। थैंक यू सर।